Hey friends, welcome to Success Care 24. So guys, we are going with some of the so many important topics that last time we have discussed about your geography series, the world map. We have seen the national parks, the wildlife sanctuaries of India, the continents of India, the important oceans of the world, and the other important things. Last time we saw Ramsar sites also and World Heritage sites also of India that was declared by UNESCO. Okay, so today we are going to discuss some of the important international organizations of the world which plays a very important role in our geopolitics also, in our economic development also, in our social development also. So there are some of the international organizations that we should know about those organizations, and that also becomes a very important topic in our competitive exam. So today I have discussed some of the important organizations. We'll continue this series till the end, and now only I have discussed 4 to 5 international organizations, the most important one, and then in the next video we will continue the other international organization. Okay, so you can see in the first slide that it is about United Nations. Okay, United Nations, you all know that it is the most important international organization in the world that actually determines the geopolitics of the world. सो यूनाइटेड नेशंस, यूएन और यूनाइटेड नेशंस. सो हम लोगों के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ. ओके, सो इट वाज ओरिजिनेटेड इन 1945 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड. अर्लियर इसका नाम जो है, इट वाज अनदर ऑर्गेनाइजेशन वाज देयर, दैट वाज लीग ऑफ नेशंस. ओके, लीग ऑफ नेशंस वाज देयर लेटर. एक्चुअली लीग ऑफ नेशंस के बाद में ये जो है यूनाइटेड नेशंस, इसकी जगह में फाउंड किया गया, and this name was actually given by the then American President Roosevelt. Okay, so ये सब ना ऑर्गेनाइजेशन अगर आप लोग देखोगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये हो गया यूनाइटेड नेशन, या फिर आपका जो लीग ऑफ नेशंस था, ये सब वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे हुआ था. वी ऑल नो द मोस्ट पॉपुलर 2 वर्ल्ड वॉर्स. ओके, दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका कब हुआ था? 1914 टू 1918. ओके, 1914 टू 1918. एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका कब हुआ था? यू हैव टू टेल मी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था. ओके, लेकिन वो उसके बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही हम लोगों का क्या हो गया स्टार्ट? कोल्ड वॉर ईरा. कोल्ड वॉर ईरा बिटवीन यूएसए एंड रशिया, और उसके बाद में आई मीन यूएसए एंड यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में. आफ्टर देन वर्ल्ड again that cold war, that bipolar world became unipolar. अभी हम लोग बोलते कि वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर, एंड करेंटली तो द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ मल्टीपोलैरिटी. ओके, वी ऑल द डेवलपिंग नेशंस एंड द अदर डेवलप्ड नेशंस, वी सपोर्ट द मल्टीपोलैरिटी. ओके, मल्टीपोलैरिटी इन द सेंस के आपका एक ही कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, सारे कंट्रीज इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, और डेवलप्ड जो वे है उस पर सबका इंपॉर्टेंट शेयर होता है. ओके, so you have to tell me the second world war कब हुआ था. okay, now let's come back to the United Nation guys. so United Nation में अभी currently established 1945 में हुआ था, and currently it has 193 members, and the recent member that have joined was South Sudan. The South Sudan latest member who have joined actually the United Nations. United Nations का one specific feature I'm telling you guys, जो भी countries यहाँ पे members है उनको ही recognize करते हैं हम लोग as a country in the world level पे. Okay, the member countries, like if you were saying that 193 members are there in the United Nations, it means the world has now 193 countries. That's what I want to say कि 193 members अगर है, it means world level पे भी अगर आप लोगों को पूछा जाएगा, then there are 193 countries in the world, right? So South Sudan is the latest one. Okay, I told you कि League of Nations जो है वो United Nations से पहले आया था, और इसका जो नाम है ये दिया गया था American President Roosevelt. Okay, we have 6 organs. We have 6 organs of in United Nation, and for you guys it becomes very important to know all the 6 organs of United Nations. बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है. आप लोगों के लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि the in headquarters of all this have in New York, except your International Court of Justice. International Court of Justice का headquarter जो है आपका हेग, नेदरलैंड्स में है.
हेग नेदरलैंड्स में है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 6 ऑर्गन्स हम लोग देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पे 5 जो है परमानेंट मेंबर्स है। इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स। सो 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। India is a non-permanent member, but is trying to be a permanent member. But China is using its veto power to stop India to become a permanent member. Okay. So Economic and Social Council, Trusteeship Council, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, मैंने जो बोला है कि ये हेग नेदरलैंड्स में लोकेटेड है, ये एक्चुअली जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई कंट्री में डिस्प्यूट हो जाता है या फिर कोई कंट्री एट्रॉसिटीज कर रही है, दैट कंट्री मींस द अदर कंट्री कैन अप्रोच द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं फॉर 9 years, एंड फ्रॉम इंडिया आवर इंडियन जज दैट इज दलवीर भंडारी जी, ही इज रिप्रेजेंटिंग आईसीजे करंटली, 9 years का टर्म होता है। So that's all about United Nations। जो भी important points था I told you already, but आपको एक homework दिया है कि second world war कब हुआ था और कब तक हुआ था, that you have to say, because after that क्या हो गया था, हमारा cold war era start हो गया था, world जो है वो divided into 2 polars, okay, bipolar world, okay, and after that 1991 when USSR disintegrated, then what happened, the world became again unipolar, USA remained, okay। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मीन्स आपका ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, और इसका भी अगर आप लोग ओरिजिन देखेंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का ओरिजिन अगर हम लोग देखेंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, दैट इज योर ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, राइट। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पे दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू बीइंग इन 1944 एंड दिस ब्रिटेन वुड्स इज इन यूएसए, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी वाशिंगटन डीसी में ही है। सो ये जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है ना, यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस बन के आए थे। वन इज योर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड अनदर वन इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट वी ऑल नो इट एज वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक का पहले आप लोग क्या बोलते थे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ओके। सो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उभर के आए एंड देन इट केम टू बी नोन एज वर्ल्ड बैंक नाउ, एंड दिस इज योर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ओके। इट वर्क्स इन द रीबिल्डिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ये काम करता है आईएमएफ। देन यूनाइटेड नेशन जो है वो एज ए ऑल एज अ पेरेंटिंग एजेंसी, इसके फंक्शनिंग इज ऑन को एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल को देखते हैं। यूनाइटेड नेशन लुक्स ऑपरेट एज एन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी कंट्रीज होते हैं उनका कोटा सिस्टम होता है। कोटा सिस्टम मतलब इनका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है आईएमएफ में, वहाँ पे वो मेंटेन करते हैं, उस हिसाब से उनका जो है वोटिंग एंड ऑल दिया जाता है। अभी हाईएस्ट कोटा अगर आप लोग देखोगे देन इट इज यूएसए, यूएसए का सबसे ज़्यादा कोटा है। एंड कंट्रीज क्या है, यहाँ पे कोटा मेंटेन करता है, लाइक योर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर्स, कंट्री हैव एसडीआर्स। और उस हिसाब से अगर इंडिया का देखेंगे, सो करेंटली इंडिया इज द 8th लार्जेस्ट वन, कोटा हिसाब से अगर इफ यू विल सी 8th लार्जेस्ट वन। So that's some important points about your International Monetary Fund. ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ओरिजिनेट हुआ था एंड वाशिंगटन डीसी में ये उभर के आया, ओके। हेडक्वार्टर्स जो है इट इज लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी, ओके। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, ओके। कहाँ का हेडक्वार्टर, कहाँ पे, वेयर द हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड, हाउ इट ओरिजिनेटेड एंड ऑल। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज योर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो सी द name it is telling that South Asian Association, it means the South Asian वाला region is associated with it and the development of the South Asian Association, मतलब South Asian region में development लाने का है ये organization, the South Asian Association for Regional Cooperation, okay. So it was set up in Dhaka. In Dhaka, Dhaka is the capital of Bangladesh, of course you all know. In 1985 it was set up in Dhaka. So इसका जो permanent headquarter है वो ढाका में ही है, ढाका डिक्लेरेशन हुआ था। अगर आप लोग मेंबर्स की बात करेंगे, मेंबर्स कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, सी इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस सार्क ऑर्गेनाइजेशन, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और अगर लेटेस्ट मेंबर अगर आप लोग पूछेंगे देन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क। सो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। काठमांडू क्या है, नेपाल में,
नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, बट ये सेटअप हुआ था ढाका में 1985 में, राइट। इट वर्क्स इन द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस इन द रीजन्स इट मीन्स साउथ एशियन रीजन में जो भी कंट्रीज फॉल होते हैं उनके डेवलपमेंट पे ये वर्क करते हैं एंड कोऑपरेशन करते हैं, राइट। फॉर्म्ड इन ढाका 1985 बट हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन योर काठमांडू नेपाल, राइट। ओके, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज योर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ओके, so as the name suggests, it works in the development of trade. Okay, it works in the development of trade. Okay, so see guys, this is like इसका भी एक origin क्या हुआ? General Agreement on Tariff and Trade, GATT। ये जो है ना गेट एग्रीमेंट से बना था, गेट एग्रीमेंट था, उसके बाद में जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप लोगों को बोलना है, मैंने इसलिए इसका हेडक्वार्टर नहीं दिया है। यू गाइस हैव टू टेल मी द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO। बाकी तीनों का मैंने बोल दिया, ये एक होमवर्क आप लोग खुद सर्च करके बोलना मुझे, ठीक है। इट इज द ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड के रिलेटेड जो भी है, ट्रेड जो कंट्रीज के बीच में होता है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, फ्री एंड फेयर ट्रेडिंग हो कंट्रीज के बीच में, दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली वर्क्स इन दैट। ओके, सो इसको हम लोग पहले गेट बोलते हैं और उसके बाद में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन के आया। एंड इट हैज करंटली 164 मेंबर्स। यहाँ पे इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो मेंबर एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट। सो 23 ऑब्जर्वर, ऐसे करेंटली अगर बोलेंगे कंट्रीज के हिसाब से 164 member countries including European Union. Okay, so these are some of the important organizations that works in the development like economic development, social development and all. So ये सारे ही important organizations है guys for your exam perspective। और भी बहुत सारे important organizations हम लोग discuss करेंगे upcoming videos पे, like your BRICS है ना। BRICS भी अभी बहुत ज़्यादा development हुआ है, BRICS में बहुत सारे countries और add हुए हैं। उसके बाद में ASEAN है आपका साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए। उसके बाद में जो ऑर्गन्स है जैसे यूनाइटेड नेशंस का ICJ है या फिर आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको हम लोग इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।